ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ معلوم کروں گا کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ گھر سے کہیں چوری چھپے جا رہی ہے، خاص طور پر ہر ہفتے کے دن۔ میں اسے پوچھتا تو کہتی کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی ایسی کون سی دوست تھی جس سے ملنے وہ ہر 2-3 روز بعد چلی جاتی تھی، جبکہ میرے خیال سے تو وہ شروع سے ہی تنہائی پسند رہی تھی اور اس کی کوئی خاص دوست بھی نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں دوست کا بہانہ کر کے کس سے ملنے جاتی تھی۔ میرے ذہن میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ میں اس قسم کا مرد نہیں تھا کہ اپنی بیوی پر شک کرتا، مگر پھر بھی تجسس تو تھا نا کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کئی بار اسے الماری میں کچھ چھپاتے دیکھا، مگر پتہ نہ چل سکا کیونکہ الماری پر تالا لگا ہوتا تھا۔ میں اس سے باز پرس بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اپنے سسرال میں رہ رہا تھا۔ اس لیے سوچا کہ اس کا پیچھا کر کے خود معلوم کروں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ہفتے کے روز وہ حسب معمول گھر سے نکلے تو کچھ دیر بعد بھی میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی یوں ڈاکٹر کے پاس آنے کی؟ اچھی بھلی تھی وہ، اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں یاد آئیں۔ کچھ دن پہلے وہ میری بیوی سے کہہ رہی تھی، تمہاری طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب ہے، کہیں خوشخبری تو نہیں؟ میں یہ سن کر چونک گیا کیونکہ میری بیوی نے انکار کر دیا اور کہنے لگی، اماں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوگی، مگر پھر وہ یہاں ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ میں اس سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا تاکہ اسے لگے کہ میں سویا ہوا ہوں۔ اس نے آتے ہی دوائیوں والا شاپر الماری میں چھپا دیا۔ اس کی اس حرکت سے مجھے پکا شک ہو گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید وہ ابارشن کروانا چاہتی تھی، اس لیے دوائیاں کھا رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو اچھا ہے، میں بھی بچہ نہیں چاہتا کیونکہ اب بھی تو میں نے بہت سارے پیسے کمانے ہیں، بلکہ پیسے میں کیا، میری بیوی کماتی تھی۔ وہ ہر اتوار کی رات کو نیند میں چلتے ہوئے چھت پر چلی جاتی تھی، اور جب واپس آتی تھی تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے ہوتے تھے۔ مجھے اس سے شادی کیے سال ہونے والا تھا اور ہر اتوار کو وہ کافی پیسے چھت سے لے آتی تھی، جس میں سے آدھے میں رکھ لیتا اور آدھے اس کی ماں۔ اس بیچاری کو کچھ بھی نہ بچتا اور نہ ہی وہ کچھ کہتی تھی۔ اس بار میں سوچ رہا تھا کہ سارے پیسے خود ہی رکھوں گا اور ایک نئی موٹر سائیکل لوں گا۔ ہر اتوار کی رات 10 سے 11 بجے کے بیچ میری بیوی ثانیہ خود بخود اٹھتی تھی اور ایک ریبوٹ کی طرح چلتی ہوئی چھت پر چلی جاتی تھی، اور جب واپس آتی تو ڈھیروں پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوتے۔ اتوار کے روز میں بہت خوش تھا کہ آج ثانیہ جتنے پیسے لے کر آئے گی وہ سارے میں رکھ لوں گا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور میں ثانیہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ نیند سے اٹھے اور باہر چلی جائے، مگر یہ کیا، 12 بج گئے اور وہ اٹھی ہی نہیں۔ میں نے ساری رات انتظار کیا مگر وہ نہ اٹھی، تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اٹھی کیوں نہیں؟ صبح میں نے اس سے پوچھا تو وہ سادگی سے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کیوں میں کل رات نہیں اٹھی، شاید بہت تھک گئی تھی کل، اس لیے مجھے پیسے نہ ملنے کا بہت افسوس تھا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگلے اتوار کا انتظار کر لیتا ہوں۔ جمعے کی رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ثانیہ نیند میں اٹھ رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا، مگر وہ اٹھی اور کمرے میں ہی چکر لگا کر واپس سو گئی۔ مجھے اس کی نیند میں چلنے والی عادت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس مجھے پیسے ملنے چاہیے تھے۔ میری ساس بھی پریشان تھی کہ اس کی بیٹی اس اتوار پیسے کیوں نہیں لائی۔ اسے بھی میری طرح آنے والے اتوار کا انتظار تھا۔ اتوار والے دن میں نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا تاکہ وہ ریسٹ کرے اور تھکن کا شکار نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ نیند میں نہ اٹھے۔ اس لیے میں نے سارا دن اس کا بہت خیال رکھا اور رات ہوتے ہی اس کے نیند میں اٹھنے کے انتظار میں بیٹھ گیا، مگر وہ اٹھی ہی نہ۔ رات کے 2 بجے تک میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ وہ اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم آج پھر نیند میں کیوں نہیں اٹھی؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، پہلے بھی کون سا میں اپنی مرضی سے اٹھتی تھی جو اب اٹھوں گی، مجھے نہیں معلوم میرے یوں نہ اٹھنے کی کیا وجہ ہے۔ میری ساس بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے جو 1-2 بار اس بیچاری کی آنکھ نہیں کھلی تو اگلی بار لے آئے گی پیسے؟ میں چپ ہو گیا، مگر مجھے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ کچھ گیم کھیل رہی ہے، اور میرا شک درست ثابت ہوا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ذرا اپنے ماں باپ کے گھر سے ہوں آؤں، شام کو آؤں گا، تو کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اماں اور ابا تو کسی شادی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے بھائی بھابھی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر میں واپس آ گیا۔ ابھی اپنے کمرے میں قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ اندر سے ساس کی آواز آئی۔ وہ میری بیوی پر چلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساس کے ہاتھ میں وہی دوائیاں تھیں جو کچھ دن پہلے میری بیوی الماری میں چھپا کر رکھ رہی تھی، اور وہ ان دوائیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کس لیے کھا رہی ہے۔ میری ساس کو شک تھا کہ کہیں وہ ابارشن کی دوائیاں تو نہیں کھا رہی۔ ساس کی سختی سے پوچھنے پر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی یہ دوائیاں نیند میں جلنے کی بیماری کی وجہ سے کھا رہی ہوں،
इतने अरसे की नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन आपने लालच में मेरा इलाज नहीं करवाया, तो इसलिए मैंने खुद अपना इलाज करवाने का सोचा और ये दवाई खा रही हूँ ताकि मैं नींद में ना चलूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यानी इसीलिए मेरी बीवी इतवार के रोज़ नहीं उठी थी, क्योंकि वो दवा ले रही थी। मुझे इस पर सख्त गुस्सा आया जब उसे पता था कि वो नींद में चलते हुए छत पर चली जाती है और उसे पैसे मिलते हैं, तो उसे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने इस मामले को अपने तरीके से संभालने का सोचा और इन माँ बेटी को खबर न होने दी कि मैं इनकी बातें सुन चुका हूँ। मैंने फैसला किया था कि इस डॉक्टर के पास जाऊँगा जिसके पास वो इलाज के लिए जाती है, और उसे जाकर कहूँगा कि मेरी बीवी को कोई दवा न दे। 2 दिनों के बाद मेरी बीवी कहीं जाने के लिए तैयार हुई। मुझे पक्का यकीन था कि वो डॉक्टर के पास ही जा रही होगी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे रहा। देखा तो वो माहिर नफ्सियात के क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मैं इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो जाए तो मैं डॉक्टर से खुद बात कर सकूं। आधे घंटे के बाद मेरी बीवी क्लिनिक से निकली और चले गई। इसके वहाँ से निकलते ही मैं जल्दी से क्लिनिक में दाखिल हुआ, मगर मुझे कुछ और झटके लगने अभी बाकी थे। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि माहिरा थी, मेरी पहली मोहब्बत। उसे देखकर मैं एकदम माजी में चला गया। हम एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। माहिरा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती थी, मगर वो मेरे काम न करने की वजह से खाइफ रहती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही आराम तलब और काहिल वाक़या हुआ था, और इन दिनों इसके लिए बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए थे। इसने अपने घर वालों के साथ मेरे बारे में बात की। उनके लिए अपनी बेटी की खुशी हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ थी, मगर उन्होंने उससे कहा कि वो मेरे साथ इसकी शादी करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर मैं कोई काम धंधा शुरू कर दूं, कोई नौकरी कर लूं या अपना कारोबार शुरू कर लूं, तो इसकी शादी मेरे साथ कर देंगे। इस दिन माहिरा बहुत खुश थी और उसने मुझे कॉल करके कहा था कि इसके घर वाले मेरे लिए मान गए हैं। मगर जब मुझे ये पता चला कि इन लोगों ने शर्त क्या रखी है, तो ये सुनकर मैं थोड़ा सटपटा गया, क्योंकि मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं ये चाहता था कि बैठे बैठे मुझे दौलत हासिल हो जाए, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे माहिरा से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसकी दौलत पर नज़र थी। मैं ये चाहता था कि वो अपने बाप से कहकर मुझे कोई बिजनेस सेट करवा दे, और जब उसके साथ ये बात की तो वो ये बात सुनकर कितनी देर खामोश रह गई, मगर जब वो बोली तो इसका लहजा बुझा बुझा सा था। वो कहने लगी कि मुझे सब लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी माँ ने, मुझे सब लोगों ने समझाया था, मना किया था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम महज रुपए पैसे के लिए ही मुझसे मोहब्बत के नाम पर खेल के रहे हो। मगर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे समझ आ गया है कि मेरे घर वाले सच कहते थे। मैंने तुम्हें समझने में गलती की थी। आज से हम लोगों के रास्ते जुदा हैं। जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे एकदम से इतनी जल्दी अपने इरादों को जाहिर नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा संभल कर चलना था, इस वक्त का इंतज़ार करना था। पहले मुझे इसको इस बात की यकीन दहानी करवा देनी चाहिए थी कि मैं कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, या फिर कुछ वक्त तक कोई काम शुरू कर लूँगा। जब उससे मुझ पर एतमाद हो जाता और शादी हो जाती, तो फिर मैं उसके बाद उसके सामने ये बात रखता। मगर मैंने जल्दबाजी के हाथों मैंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। मगर अब क्या हो सकता था। और फिर मुझे पता चला कि उसके अपने चचा ज़ाद के साथ शादी हो रही है। उसका ये चचा ज़ाद दुबई में रहता था और वहीं पर इसका कारोबार था। बिलाखिर उसने अपने माँ बाप की बात मान ली थी और उसने मुझे छोड़ दिया था, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी। अगर सच कहा जाता तो वो अपने फैसले में हक बचानिब थी। रिश्ते चाहे सच्चे हों या झूठे, जब वो टूटता है तो इंसान को दुख तो बहुत होता है, और मुझे भी अपना माहिरा के साथ रिश्ता टूट जाने का बहुत ज़्यादा हुआ था दुख। बहुत तकलीफ़ हुई थी, और फिर आखिर मैंने खुद को संभाल ही लिया था। अब अचानक उसको देखकर मैं हैरान रह गया था। मुझे लगा था कि वो अपने शौहर के साथ बाहर शिफ्ट हो गई होगी, मगर अब उसको यूं देखकर पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। वो भी मुझे देखकर चौंक गई। पूछने लगी, तुम यहाँ? मैंने कहा, सानिया मेरी बीवी है, मुझे बताओ कि वो यहाँ क्यों आती है। माहिरा ने गहरा सांस लिया और कहने लगी, पहले मुझे बताओ कि इससे तुम्हारी शादी कैसे हुई। मैंने उसे बताना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद मेरे माँ बाप मुझे उठते बैठते ताने देते थे कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, हम कब तक तुम्हारा बोझ उठाएंगे, तुम्हें कोई काम शुरू कर लेना चाहिए। मगर मैं इन तमाम बातों को सुनी अनसुनी कर देता था, और मैं किसी और ऐसी लड़की की तलाश में था जिसके साथ शादी करने पर मुझे बहुत सी आसाइशें और पैसे मिलते। मगर मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक इस तरह की कोई लड़की नहीं थी। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो घर में अम्मी के मुंह से अजीब सी बात सुनकर मैं चौंक गया था। वो मेरी खालाजाद बहन के बारे में बात कर रही थी। सानिया मेरी खाला की इकलौती बेटी थी, और वो मामूली सी शक्लो सूरत की लड़की थी, और इसकी रंगत भी काली थी। कोई इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। एक तो वो देखने में खूबसूरत नहीं थी, दूसरा इसके पास रुपया पैसा भी नहीं था। लोगों को शादी करने के लिए जहेज़ का भी लालच होता है कि देखते हैं लड़की जहेज़ में क्या लेकर आ रही है।
मगर यहाँ तो सिलसिला भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर बैठे हुए उम्र गुजार रहे थे। वो मेरी हम उम्र थी और मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था। मगर इस वक्त अम्मी इसके बारे में जो बात कह रही थी उसे सुनकर मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी महसूस हुई थी और मुझे चौंकाने के लिए ये बात काफ़ी थी। मेरी अम्मी अब्बू को बता रही थी पिछले कुछ दिनों से सादिया के साथ अजीब मामला हो रहा है। पूरे ख़ानदान में अजीबोगरीब बातें फैली हुई हैं। सब लोग कह रहे हैं कि इस पर जिन्नात आशिक हो गए हैं या फिर जिन्नात का साया हो गया है, जो इससे बैठे बिठाए ढेरों सारे पैसे दे जाते हैं और इन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मैंने तो इन बातों को मन घड़क और झूठ समझा था, मगर आज मैं जमीला की तरफ गई थी। जब मैंने उससे पूछा कि ये सानिया के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें मोहल्ले में फैल चुकी हैं, तो उसने मेरी बातों की तायीद की। उसने खुश होते हुए कहा कि मेरे रब ने हम पर बहुत करम किया है, हमारे तमाम मसले हल हो गए हैं। मैं अम्मी की बात सुन के चौंक गया था। फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे खाला के घर जाकर देखना चाहिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने एक रात वहाँ गुजारी और अपनी आंखों से देखा कि सानिया नींद में चलते हुए छत पर चली गई और काफ़ी देर बाद जब उसकी वापसी हुई तो देखा कि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। मुझे मालूम हो गया कि अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके हालात तो वाकई बदल गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने सानिया को नज़रों ही नज़रों में तोला तो मुझे महसूस हुआ कि वो इतनी भी बुरी नहीं है और मैं एक नतीजे पर पहुँच चुका था। मेरी अम्मी मुझसे अक्सर उसके रिश्ते के लिए कहती थी, क्योंकि मेरे नकम्मेपन की वजह से ख़ानदान में कोई और मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था और मैं भी माहिरा के चक्कर में था, मगर माहिरा ने मुझे छोड़ दिया था और अब मेरे पास यही रास्ता था कि अपनी अम्मी की बात मानूं। मैं इसी इंतज़ार में था कि मेरी अम्मी इस बारे में मुझसे बात करेंगी, मगर कई दिन गुजरने के बाद भी वो तो जैसे इस मौजू को भूल ही चुकी थी। फिर मुझे खुद ही इनसे इस बारे में बात करनी पड़ी। पहले तो मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए, मगर फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये तो उनकी दरीना ख्वाहिश थी सानिया को अपनी बहू बनाने की कि वो सिर्फ रंगो रूप और शक्लो सूरत में कम थी, बाकी वो बहुत सलीकाश्वार थी और घरेलू कामकाज में ताक थे। शक्लो सूरत के अलावा इसमें एक ये खामी थी कि वो नींद में चलती थी, मगर अब उसकी ये खामी भी उसकी खूबी बन चुकी थी। इसी खामी से तो वो अब तक पैसे कमा कर अमीर हो चुकी थी। अम्मी ने जब खाला से मेरे रिश्ते की बात की तो उन्हें भी इस बात पर एतराज़ नहीं था और फिर थोड़े ही अरसे के बाद हमारी शादी हो गई। शादी से पहले खाला की एक यही शर्त थी कि मैं उनके घर में रहूँगा। इस बात पर अम्मी अब्बू को तो एतराज़ था, मगर मुझे ये बात पसंद आई थी। घर में मुझे अम्मी अब्बू से फिर भी कामकाज न करने के ताने मिलते थे, मगर मैं वहाँ पुरसकून रह सकता था। और फिर खाला ने कहा था कि सानिया को हमारी छत से पैसे मिलते हैं, अगर वो अपने ससुराल चली गई तो उसको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे और मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दे सकता था। मैंने पैसों के लिए ही तो उससे शादी की थी, इसलिए मैं घर दमाद बन गया। मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजरने लगी थी और मुझे शादी के बाद ही पता चला था कि मेरी बीवी मुझे शुरू से ही पसंद करती थी और वो मेरे साथ शादी करने पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो हर वक्त मेरी खिदमत पर मामूर रहते थे। जो ही मेरे मुंह से कोई भी फरमाइश निकलती, बात निकलती, उसी वक्त पूरा करने पर कमर बस्ता हो जाती थी। अब मैं भूले से भी तुम्हें याद नहीं करता था। मैं इतना ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, मुझे किसी और को अब याद करने की क्या ज़रूरत थी। माहिरा ने मेरी सारी बातें गौर से सुनी और पूछा, तुमने कभी अपनी बीवी से जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अक्सर ये सोचता था कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब अपनी बीवी से या खाला से ये बात पूछता तो मेरी बात को टाल जाते थे। मोहल्ले वालों की बातों पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। वो कहते थे कि मेरी बीवी पर साया है, इस पर जिन्नात आशिक हैं और जिन्नात ही मेरी बीवी को पैसे देकर जाते हैं। एक दिन इस सवाल ने मुझे बहुत तंग किया तो मैंने ये फैसला किया कि आज मैं अपनी बीवी को देखूंगा कि वो क्या करती है, वो नींद में कहाँ जाती है और पैसे कैसे हासिल करती है, कौन उसे पैसे दे जाता है। मगर न जाने क्या वजह थी कि जब मैं सोता था तो मेरी सुबह जाकर ही आँख खुलती थी। मेरी रात को कभी भी आँख नहीं खुली थी, इसलिए मैं अपनी बीवी को देख नहीं पाता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं देखूंगा कि मेरी बीवी क्या करती है। एक दिन मैं आंखें बंद करके लेट रहा था और सोया नहीं था। जब रात को वो उठकर बाहर जाने लगी तो उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी इसके पीछे चल दिया। जब मैं उसके पीछे चलता हुआ जा रहा था, एकदम से एक गलमे के साथ मेरी ठोकर लगी। गमला एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिर गया और वो चुकन्नी हो गई। उसने मुझे मुड़कर देखा और वापस पलट आई और मैं ये सोच रहा था, अगर वो नींद में थी तो फिर उसे गमले की आवाज़ पर वापस कैसे पलटी। मगर फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और इस बात को भूल भाल गया। हमारे घर में रुपए पैसे की रेल पेल हो चुकी थी और मेरी अम्मी का ये कहना था कि मुझे इन पैसों का कोई कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, मगर मैं इनकी इस बात को टाले जा रहा था। मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना चाहता था और मैं तो वैसे भी जिम्मेदारियों से भागता था, और अब जब मेरी सारी ज़रूरियात बिन कहे पूरी हो रही थी
तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मुझे बस आराम तलबी से मतलब था। बस कभी कभी ये सवाल मेरे जहन में आ जाता था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। एक दिन रात को घर आने के बाद मैंने अपनी बीवी से पूछा उसे छत से पैसे किस तरह से मिलते थे। मेरी बात पर उसने मुझे हैरत से देखा और हमेशा वाला जवाब दिया, मैं नींद में होती थी, मुझे नहीं पता, इस बारे में कुछ भी, मुझे कुछ नहीं याद। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पैसे जिन्नात देकर जाते हैं? उसने मुझे चौंक कर देखा और हैरत से गोया हुई, मुझे नींद में चलने की बीमारी काफ़ी अरसे से है, मैं नहीं जानती कि नींद में मुझे पैसे कैसे मिलते हैं। ये सब बताने के बाद मैंने माहिरा से पूछा, मेरी बीवी ने भी तो तुम्हें ये सब बताया होगा, तो मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे पास किस मर्ज़ की दवा लेने आती है? माहिरा ने सरसरी सा कहा, कुछ ख़ास नहीं, मैंने उसे नींद में ना चलने की दवा दी थी। मैंने कहा, आज के बाद मेरी बीवी इस काम के लिए तुम्हारे पास आए तो हरगिज़ उसे दवा मत देना, मैं चाहता हूँ कि उसके ज़रिए पैसे कमाता रहूँ। मैं ये कहकर वापस आ गया और घर आकर अपनी बीवी को बग़ैर बताए उसकी दवाइयाँ बदल दें और विटामिन की गोलियाँ रख दें। अब मुझे मुकम्मल यकीन था कि वो इतवार की रात लाज़मी उठेगी और नींद में फिर से छत पर जाएगी और पैसे लाएगी। इस दौरान मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी बीवी माहिरा से ना मिले। अगरचे माहिरा एक अच्छी लड़की थी, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि वो मेरी बीवी को कुछ सिखा पढ़ा न दे कि ऐसा मत करे। मैंने अपनी बीवी को दवा खाते देखा, मगर मैं खुश था कि दवा नहीं, वो तो विटामिन की गोलियां हैं, इनका क्या असर होना है। इतवार की रात में बेचैनी से उसके उठने का इंतज़ार करने लगा, मगर नतीजा वही निकला जो पहले हो चुका था, वो नहीं उठी। मैं एक बार फिर से पैसों से महरूम हो गया। अगले दिन मैं उससे इसरार करने लगा कि मुझे फिर से पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। वो बहुत बेयकीनी की हालत में मुझे देख रही थी, जैसे मेरी बात का यकीन नहीं आया हो मैं उसके साथ इस तरह की बात कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं नींद में नहीं चलती। जब मुझे ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं मिले तो मैं परेशान हो गया था। मैंने उसके साथ इसी मकसद के लिए ही तो शादी की थी, और जब मुझे मेरा मकसद ही पूरा होता नहीं नज़र आ रहा था तो फिर मैंने उसका क्या करना था। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे अपनी ज़रूरतों के बारे में भी सवाल करने लगे, और अब मुझे रह रहकर इस पर गुस्सा आ रहा था। मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगने पड़ते थे, और जब मैं अम्मी के सामने 10 से सवाल दराज करता तो वो मुझ पर गुस्सा करती थी। मुझे सौ बातें सुनाती थी, मुझे कहती थी कि तुम काम धंधा क्यों नहीं करते, ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, तो मेहनत की आदत डालो अपनी और अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाओ। साथ मुझे खाला पर भी हैरत हो रही थी, जो बात बात पर हालात की तंगी का रोना रोने लगती थी। मैं समझने से कासिर था कि इतना सारा पैसा इनके पास था, वो सारा पैसा कहाँ गया। मैं इनसे जब भी ये सवाल करता तो वो कहती, अपनी बीवी को डॉक्टर के पास क्यों जाने दिया, ना वो दवा खाती ना इसकी बीमारी ख़त्म होती और हमें पैसे भी मिलते रहते। अगले दिन मैंने नेल कटर लेने की गर्ज से जैसे ही उसका बैग खोला तो मैं शुश्ता रह गया, क्योंकि बैग में काफ़ी पैसे थे। ये पैसे कहाँ से आए? वो तो कोई नौकरी भी नहीं करती थी। मैंने गिने तो वो पूरे 20,000 थे। इसी वक्त इसके मोबाइल पर मैसेज की बेल हुई तो मैंने ना चाहते भी इसका मोबाइल देखा तो माहिरा ने मैसेज किया था कि जो पैसे तुम्हें दिए हैं इनका अपने शौहर को मत बताना, और जब ज़रूरत हो मुझसे फिर ले लेना। ये मैसेज देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या माहिरा ही अब तक मेरी बीवी को पैसे देती आई है? मगर फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। सानिया को तो मेरी शादी से पहले के पैसे मिलते हैं, माहिरा से तो वो अब मिली है, लेकिन फिर माहिरा ने उसे पैसे क्यों दिए? मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी बीवी की निगरानी करनी पड़ेगी। अगले दिन वो घर से बाहर निकली तो मैं भी इसका मोहतात कदमों से पीछा करने लगा। वो आज खिलाफ मामूल क्लिनिक नहीं गई थी, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर रुककर किसी को कॉल मिलाने लगी। थोड़ी देर बाद माहिरा आती दिखाई दी और वो दोनों पुलिस स्टेशन दाखिल हो गई। मैं बहुत बुरी तरह डर गया कि ये कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं गई। मैं घर वापस आ गया। जब मेरी बीवी आई तो मैंने पूछा, कहाँ गई थे? मुझे लगा कि वो फिर से झूठ कहेगी, मगर वो कहने लगी, मैं पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि मुझे और माहिरा को अपने फ़ोन की रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। कल हमारे साथ डकैती की वारदात हुई है और हमारे फ़ोन छिन गए हैं, तो बस इसी ले गए। मुझे वैसे शायद इसकी बात पर यकीन आता, मगर मैंने उसे चौंक के अपनी आंखों से देखा था, इसलिए यकीन कर लिया और मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। जब से बीवी ने नींद में चलना छोड़ दिया था तब से पैसे की शदीद कमी हो गई थी, और मुझे मेरे माँ बाप कहने लगे थे, अब तुम कमाओ, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। साथ मुझे अपनी बीवी पर शक हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है, कि उसे नहीं पता पैसे कहाँ से आते हैं। इस दिन मैं अपना शक दूर करने के लिए उसे ज़बरदस्ती ऊपर ले आया और उसे कमरे में बंद कर दिया। वो हैरान थी और मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो गया है। वो मुसलसल रो रही थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैंने कहा, मुझे पैसे चाहिए बस अब।
दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने झड़ी से अंदर का मंजर देखा। मुझे भी इस बात का यकीन था कि मेरी बीवी को जिन्नात पैसे देकर जाते हैं, मगर इससे जो अगला मंजर था वो मुझे हैरान कर गया। कमरे में एक जगह पर खाली ईंटें इस तरह से तरतीब दी गई थी जिनको आसानी से निकाला जा सकता था और वहाँ से गुजरा जा सकता था। मेरी बीवी ने एक एक करके वो तमाम ईंटें वहाँ से निकालना शुरू कर दी और वहाँ पर एक बड़ा खला बन गया जिससे वो आसानी से गुजर सकती थी। मैं इसको हद तक वहाँ पर खड़ा देख रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस मामले की पूरी तरह से खोज लगा कर रहूँगा। इसके जाने के बाद मैं भी वहाँ से चला गया और वो खिला एक छत पर खुल रहा था। मेरा दिमाग घूम रहा था कि ये क्या चक्कर है। ये तो इस औरत का घर है जो इस पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। अब देखना ये था कि मेरी बीवी इसके कमरे में क्यों जा रही है। ये जानने के लिए मैं इस छत से नीचे उतर गया और जिस कमरे में मेरी बीवी गई थी मैं उसके बाहर खड़ा होकर अंदर वाली गुफ्तगू सुनने लगा। वो औरत मेरी बीवी से मुखातिब हुई, अरे तुम तो बहुत वक्त के बाद यहाँ पर वापस आई हो, खैरियत है? इतना वक्त कहाँ पर थी? मेरी बीवी कहने लगी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ। वो औरत बोली, मगर तुम तो कह रही थी ये गलत है, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर को मज़ीद धोखा नहीं दे सकती। मेरी बीवी बोली, ये सब छोड़ें, चलें काम पर निकलते हैं। मैं दंग रह गया कि क्या गुफ्तगू हो रही है। वो दोनों बुरके पहनकर घर से बाहर निकल गईं। पीछे पीछे मैं भी था। रात के 12 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। मेरी बीवी और वो औरत जैसे ही सड़क पर आए, 2 और आदमी जाने कहाँ से आकर इनके साथ मिल गए। वो सब क्या करने जा रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि दूर से कार आ रही है। अचानक मेरी बीवी इस कार के आगे आ गई और गिर गई। इस औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गाड़ी से 2 अफराद जैसे ही बाहर निकले, जो 2 आदमी साथ थे, उन्होंने गाड़ी वाले अफराद पर पिस्तौल तान ली और उनको लूट लिया। ये सब देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जगह से हिल पाता, मगर अचानक वो हुआ जिसकी तवक्को किसी ने नहीं की थी। पुलिस और माहिरा आते दिखाई दी और पुलिस ने आते ही इन सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मेरी बीवी को छोड़ दिया और बाकी सबको ले गए। वो गाड़ी वाले भी चले गए। अब सड़क पर सिर्फ माहिरा और मेरी बीवी थे। वो मेरी बीवी से कहने लगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ भी नहीं सुन सकता था, इसलिए एकदम उनके सामने आ गया। मुझे देखकर मेरी बीवी सटपटा गई थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था कि ये सब क्या चल रहा था। मैं गुस्से से बोला कि ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? आज मुझे सच सच बताओ क्या मामला है। उसने पहले तो टाल मटोल से काम लिया, मगर अब मैं उसकी किसी बात में आने वाला नहीं था। मुझे अब सच बताओ क्या मामला है, माहिरा क्यों यहाँ है? वो रोते हुए बोली, ये मामला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, अम्मा की दवाई के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। इस वजह से मैं इस वक्त छत पर बैठी रो रही थी। जब साथ वाली आंटी ने मुझे रोते देखा और मुझसे पूछा कि क्या मामला है, जवाबन मैंने उन्हें अपने बारे में बताया था कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ। वो औरत मुझे कहने लगी कि तुम कोई काम करोगी जिससे तुम्हारा तमाम मसले हल हो जाएंगे, और मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए था। मैंने उसे हाँ में जवाब दे दिया। उसने कहा कि तुम मेरे काम में शामिल हो जाओ, हम चोरी चिकारी और लूटने का काम करते हैं। अगर तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगी तो फ़ायदे में रहोगी, मगर ख्याल रखे तुमने इस बात के बारे में किसी को भिनक भी नहीं पड़ने देनी, और ये तमाम काम राजदारी के साथ करना है। मैंने मजबूरी में हामी भर ली। मैं इसके साथ फिर ये काम करने लगी थी, इसलिए मेरे पास इतने पैसे आ जाते थे। जानबूझकर ये मशहूर कर दिया कि मुझे नींद में चलने से पैसे मिलते हैं। सब ठीक जा रहा था, मगर फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत करती हूँ। इसलिए मैंने माहिर नफ्सियात के पास जाना शुरू किया। माहिरा से मेरी दोस्ती हुई। उसने मुझे ये काम छोड़ने की तरगीब दी, घर के खर्च के लिए पैसे भी दिए और मुझे कहा कि पुलिस को सच बता दो, वो तुम्हें वादा माफ गवाह बनाकर छोड़ देंगे। इसलिए मैं मौके की तलाश में थी कि कब आखिरी बार ये काम करूं ताकि पुलिस रंगे हाथों मेरे साथियों को गिरफ्तार कर ले। मैंने चालाकी से इस औरत के मोबाइल से माहिरा को फ़ोन कर दिया था और वो पुलिस लेकर आ गई। अब मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं अब खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं तो इसकी बातों को सुनकर सकते में आ गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी ऐसा भी कर सकती है, मगर अब क्या हो सकता था। जो होना था वो हो गया। माहिरा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी बीवी जब मेरे पास आई तो इसकी जहनी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने इसे समझाया और ऐसा काम करने से बाज रहने के लिए कहा कि पुलिस को खबर हो जाती है तो तुम्हें जेल हो जाती। वो तो पहले ही इस काम से बाज रहने का इरादा रखती थी, मगर अब मेरे समझाने पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको समझाते समझाते मुझे खुद ये एहसास हुआ था कि मैं भी तो शॉर्टकट ही ढूंढ रहा था। मैं भी तो यही चाहता था कि मुझे बैठे बैठाए दौलत मिल जाए, इसलिए तो मैंने सानिया के साथ शादी की थी। मगर अब मेरी सोच बदल चुकी थी, मेरी अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। मुझे एहसास हो गया था कि गलत काम गलत ही होता है
اور مجھے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ میں نے ثانیہ اور ماہرہ سے معافی مانگی۔ میں سوچتا تھا کہ قدرت نے مجھے دربارہ ماہرہ کا سامنا کیوں کروایا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے اس کے ذریعے ہوش دلانا مقصود تھا کہ میں کس قدر غلط تھا۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں بھی دن رات کام کر رہا تھا۔ دن کے وقت میں نوکری کرتا اور رات کو میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار چلا رہا تھا۔ اللہ پاک نے مجھ پر بہت کرم کیا تھا اور میں دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔